Thank you. So today we are going to discuss the next topic, which is about the hardened concrete property. Uh, just we skipped one class, one topic, which was about the mineral mixes. So in later class, I will take an additional class rather to cover that topic. Okay, just half an hour or 1 hour, that topic will be covered. Today we are going to discuss the another property of concrete, which is about the hardened concrete property. Hardened concrete properties mean the properties of concrete when it is in a hardened state. Concrete has mainly two states. One is known as the fresh concrete. uh, as long as concrete is in workable state, the concrete is in fresh state. The properties belong to concrete are known as fresh concrete properties. Whereas once it becomes hardened into a mass, so so then the properties of concrete are known as hardened concrete properties. ठीक है, categorize as hardened concrete properties. अब जो है hardened concrete properties जो हैं, there are so many properties. By virtue of them we can differentiate different kind of concretes. For example, the important properties among them are the strength of the concrete, modulus of velocity, creep in concrete, and then there is a impermeability is another kind of properties. Strength, you know, all of you know the concrete is meant for strength. Okay, why concrete is being used as a construction material? Because it is strong. Okay, and it is durable. ठीक है, it has high modulus of velocity. And then concrete, though concrete is susceptible for creeping, huh? But that depends upon different parameters in the concrete. ठीक है, and concrete sometimes is permeable, and but it can permeable, but it can be made to some extent impermeable. ओके, सो उसको जो है these properties, हम जो है जो कंक्रीट को फर्दर स्टडी करते हैं या इसको प्रॉपर्टीज को जब वी आर वर्किंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, these are the major concrete properties for hardened state. Okay, so first of all is the strength. Strength क्या है basically? Strength is the ability of a material to sustain ultimate loading. The ability of a material to sustain ultimate loading. That is also known as the maximum amount of stress that a material can bear without failure. Okay, this is the basic definition of a strength. There is a simple definition. There is a difference between stress and strength. क्या difference है बच्चों? Hmm? What is difference between stress and strength? Stress और strength के बीच में क्या फर्क है? Strength जो है, this one, strength is basically the maximum amount of stress that a material can bear without failure. सही है ना? और stress क्या है? Stress जो है the maximum amount, the amount of pressure that a body can resist internally. ठीक है ना? Resistance to the pressure. ठीक है? Amount of force per unit area on a body. ठीक है? That can resist. तो वो जो है क्या है? Stress है. There are many strengths of concrete. Mainly strength of the concrete is basically referred to the compressor strength. Okay, compressor strength is very important in concrete. We always talk about, when we talk about strength, so our basic mean is the compressor strength. But strength has different kinds. For example, it can be a compressor strength, it can be a tensile strength, it can be a shear strength. सही है ना? I hope you know, you all of you know the shear strength. What is shear strength? Okay, पता है, सबको पता है shear? Guys, can you listen me?
Yes, Yes, sir, you're sir. audible. Okay. अच्छा. जो strength जो है, the compressive strength of a concrete or strength of the concrete is basically dependent upon three main strength: the strength of the paste in the concrete, the strength of the interfacial bond, and the strength of the aggregate. ठीक है ना? Basically जो concrete है, just I will draw it some portion. For example, if it is the block of the concrete, it has composed of aggregates, paste that surround the aggregate, ऐसे ही है ना? And then there is a bond between this paste and aggregate, known as ITZ, interfacial transition zone, ITZ. सही है ना? ये जो बॉन्ड है, तो इनकी स्ट्रेंथ जो है मिला के, द स्ट्रेंथ ऑफ दीज थ्री जो है बेसिकली क्या है, इज द स्ट्रेंथ ऑफ compressive strength. Some people say the average of these three is compressive strength होती है while in compression, and some people say it is the weakest link among these three is the strength of the concrete. Basically, uh, आप क्या समझते हैं? सर वीकेस्ट जो होगी वही स्ट्रेंथ होगी है, अगर वो फेल हो गई तो जाहिर सी Exactly, बात है वो फेल हो जाएगी. exactly. The weakest link among these three are known as the strength of the concrete. इसमें weakest link कौन सा हो सकता है? Strength of the aggregate is It is high. जो नॉर्मल एग्रीगेट्स यूज होते हैं ना, नॉर्मल एग्रीगेट्स मेड ऑफ जो चर्च के बने होते हैं जैसे लाइमस्टोन के, एंड एग्रीगेट मेड ऑफ ग्रेनाइट एंड दीज आर स्ट्रॉन्गर देन द कंक्रीट. ठीक है? तो उस स्टेज में आपके पास वीक लिंक किसका बनता है? स्ट्रेंथ ऑफ द पेस्ट एंड स्ट्रेंथ ऑफ द आईटीजी. एंड आईटीजी जो है इंटरफेशियल बॉन्डिंग है, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द पेस्ट. स्ट्रॉन्गर द पेस्ट, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड. ठीक है? समझ आ रही है ना? अगेंस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द पेस्ट is now strength of the ITZ is always also dependent upon the type of aggregates, the shape of the aggregate. अब समझ आ रही है ना? If the aggregate are clear on surface, then there will be a stronger bond. समझ आ रही है ना? The concrete is always measured in terms of pound per square inch, known as PSI, or also another unit in MK system is the megapascal, or sometime also megapascal is written in terms of Newton per millimeter square. Okay, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर. मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें ना इसको, तो ये 10⁶ हो जाएगा. देन दैट विल बी मेगा पास्कल. दिस हैज टू सेम वैल्यू. समझ आ रही है ना? दिस टू. Similarly, uh, we can discuss in detail the pair strength, interfacial bonding, and the aggregate strength. Uh, Mainly, the binder is a cement that that has main binder in the concrete. The binding occur because of the cement paste. If the paste has a higher binding strength, the higher will be the strength of the concrete. तो ये आप देखें यहाँ पे, here is a paste. If paste is stronger, paste क्यों stronger होगा? Who will tell me? वो Anybody? डिपेंड करता है सर केमिकल्स, मतलब कि सीमेंट पे कौन कौन सी चीज़ किस किस चीज़ और कौन से प्रोपोर्शन से बना हुआ है. लाइक अगर उसका ग्रेड 53 हो या 33 हो तो दे हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ. कहाँ चले गए हो आप? Just my question is very simple. I'm talking about just paste, not the grades. Okay, why these grades has higher strength? For example, 50 grade has higher strength than the 30 grade.
पेस्ट जो है क्यों देगा? आई गेस उनके कंपोजिशन पे डिपेंड करता है और वाटर टू सीमेंट रेशो पे। Water cement. One is the water cement ratio. Okay, I will discuss with you the factor affecting the strength of the paste. Among them, क्या है? आप जो है बेसिकली पेस्ट की स्ट्रेंथ किससे आती है? आपको जो ना मैंने फर्स्ट क्लास में शायद इन सेकंड क्लास वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल that the when the hydration process occur, there are two products. One is the calcium silicate hydrates, which is mainly responsible for the strength of the concrete, and another one is the calcium hydroxide. ऐसे ही है ना, दो प्रोडक्ट बनते हैं ना उससे, आपके हाइड्रेशन प्रोडक्ट से, यस हाइड्रेशन सर। ऑफ द कैल्शियम सिलिकेट्स, डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट्स की वन हाइड्रेशन होती है तो दो प्रोडक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? दो प्रोडक्ट बनते हैं। आपने जो ना मेनली दो चीजें देखनी है इसमें, हायर द अमाउंट ऑफ द कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, हाई विल बी द स्ट्रेंथ। क्या होगा? if the calcium silicate hydrates has high amount, then the strength will be higher. समझ आ रही है ना? Another thing, when these calcium silicate hydrates are closely spaced during its formation, then the strength will be higher. Closely spaced से क्या होगा? When these get precipitate during its formation or during hydration processes, so the strength between these calcium silicate hydrates will be higher. तो closely spaced किस वक्त होंगे? When there is a low water cement ratio. When there is a low water cement ratio. समझ आ रही है ना? If there is a high water cement ratio, उस केस में क्या होगा? स्ट्रेंथ क्यों कम होगी पेस्ट की? उसको इसलिए कम होगी कि the water molecules will fall between these two molecules of calcium silicate hydrates. तो इनके बीच पे अगर वाटर मॉलिक्यूल है, अगर वाटर पार्टिकल है, देन द बॉन्ड बिटवीन कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट्स हाँ विल बी लेसर, ठीक है ना, एज कंपेयर टू कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट्स बॉन्ड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन क्लोज स्पेसिंग। समझ आ रही है ना? तो वाटर सीमेंट रेशियो पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा? वाटर सीमेंट रेशियो। एंड अनदर वन इज द अमाउंट ऑफ द कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट फॉर्मेशन, or you can say the type of hydration of the concrete. If the hydration of the concrete uh, is proper, uh, if the hydration of concrete is happening in what you say it अगर ठीक तरीके से हो रही है, हाइड्रेशन पूरी हो रही है, कंप्लीट हो रही है हाइड्रेशन, द प्रोसेस में जो है हाइड्रेशन में कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट्स प्रॉपर बन रहे हैं, उसको उसको टाइम मिल रहा है, तो आपके पास जो सीमेंट की टाइप है, आपके पास जो ना सीमेंट अच्छी क्वालिटी की है, उससे हाइड्रेशन प्रॉपर हो रही है, देन दी स्ट्रेंथ विल बी हायर, स्ट्रेंथ ऑफ द पेस्ट, ठीक है ना? और कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट्स पे भी और उसकी वाटर सीमेंट रेशियो पे भी डिपेंड करता है। एंड देन देयर इज ए इंटरफेशियल बॉन्ड। सेकंड क्या है? आईटीजी, इंटरफेशियल बॉन्ड इज आल्सो नेसेसरी रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ। तो इसमें जो है हायर द स्ट्रेंथ ऑफ द पेस्ट विल गिव द हायर इंटरफेशियल बॉन्डिंग। समझ आ रही है ना? तो आप जब व्हेन यू शेक हैंड, आप जब शेक हैंड करते हैं ना, तो जिस हाथ में ताकत हो तो उसकी क्या होगा? बॉन्ड उसका जो ना सही बनता है ना दूसरे हाथ से। अब अब चेक किया होगा आपने, तो जब आपने देखते हैं कि कोई कमजोर आप में से, जस्ट इन लाइट वे आई एम टॉकिंग अबाउट, कि जब कोई बच्चा आपसे हाथ मिलाएगा ना, तो देन क्या होगा उसका? यू विल नॉट फील दैट ही हैज शॉक द हैंड। तो यार सम टाइम अगर आप जो है उसकी मैं एनालॉजी ड्रॉ कर रहा हूँ कि बाइंडिंग की, कि इंटरफेशियल बॉन्ड की, अगर सिमिलरली जो जो एग्रीगेट्स हैं उनकी, उनका जो शेप है या उनकी जो उनकी क्लीनलीनेस है, उस पर डिपेंड डिपेंड होता है। इफ
there is a clay over the aggregate that will hamper the bonding between paste and aggregate. ठीक है? Similarly, strength of the aggregate is also important for the high strength concrete. उस केस में एग्रीगेट की जो स्ट्रेंथ है वो जो ना कम हो जाती है उसे कंक्रीट की स्ट्रेंथ से. इन हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट the strength of the aggregate can be a weaker link. समझ आ रही है मेरी बात बच्चों? Are you getting my point? Strength of the aggregate is a weaker link in case of the high strength concrete. उस केस में ना एग्रीगेट की स्ट्रेंथ कम हो सकती है. जी बच्चों. यस सर, यस अच्छा सर. अच्छा. एग्रीगेट की स्ट्रेंथ जो है किस वक्त कम होती है बट जो कम नहीं होती वैसे. एग्रीगेट की स्ट्रेंथ जो है आपको कम मिलेगी जिस वक्त यू नो व्हेन यू विल टॉक अबाउट दी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट. ठीक है? हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट से क्या मुराद है मेरी? व्हेन द कंक्रीट हैज हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट. सर जो रेडिएशन को सिक्योर करने के लिए यूज होती है, आपने एग्जांपल दी थी. तो नहीं यार, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट वो नहीं होती. नो You सर. will talk. सर जब इसकी स्ट्रेंथ जो सर एग्रीगेट की स्ट्रेंथ से बढ़ जाए तो उसे हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट. नहीं वो नहीं ऐसा नहीं कहना. हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ना आपके पास जो नॉर्मल स्ट्रेंथ होती है 3000 psi. psi में बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट इन psi. ठीक है? 3000 psi है. कितना है? 3000 psi है नॉर्मल टू 4000 psi है. ठीक है? 4000 psi. सो दिस इज नॉर्मल स्ट्रेंथ. दिस इज नॉर्मल स्ट्रेंथ. ठीक है ना? तो हाई स्ट्रेंथ क्या है? कंक्रीट क्या होती है? व्हेन द कंक्रीट स्ट्रेंथ रेजेस 6000 psi. क्या किसे रेज हो? 6000 से रेज हो तो नोन एज हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट. 6000 से ऊपर हो तो उसको क्या बोलते हैं? हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट. हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट. 6000 psi. अब psi को मेगा पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको कैसे कन्वर्जन फैक्टर में बता दूं आपको क्या है वैसे. देयर इज अ कन्वर्जन फैक्टर फॉर टू कन्वर्ट psi टू मेगा पास्कल. पता क्या है? आप जो है ना psi की वैल्यू को 145 पे डिवाइड कर लेंगे देन यू विल गेट दी वैल्यू इन मेगा पास्कल. समझ आ रही है ना? 145 पे. किस पे? 145 पे. when you divide 4000 psi over 145 then you will get the value in term of क्या क्या जवाब आया? किसी ने कैलकुलेट किया? इसको करते हैं 6000 को करते हैं. शाबाश. हरी अप. सर 41.37 मेगा पास्कल. कौन से वाला? 6000. 6041. यस सर. ओके दिस मीन 40 मेगा पास्कल से ऊपर जब भी आपके पास स्ट्रेंथ होगी तो देन दैट विल आल्सो बी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट. ठीक है ना? एंड देन देयर इज अ पुअर स्ट्रेंथ कंक्रीट. पुअर क्या होती है? जब जो स्ट्रेंथ है स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट फॉल बिलो 2000 दैट इज पुअर स्ट्रेंथ कंक्रीट. इसको लो नहीं बोलते, पुअर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पुअर सर. पुअर स्ट्रेंथ कंक्रीट. पुअर स्ट्रेंथ सर तो कंक्रीट इज ये जी. सर ये 2000 और 3000 के दरमियान अगर आ जाए तो फिर उसे क्या कहेंगे? अच्छा मैं बताता हूँ आपको. इसको पुअर इसलिए बोलते हैं कि इस स्टेज पे दिस इज नॉट फिट फॉर कंस्ट्रक्शन. कौन सी वाली? जो कंस्ट्रक्शन टेस्ट करते हैं ना, जब भी किसी बिल्डिंग में आपको बताता चलूं कि आप जब वंस यू विल बी इंजीनियर तो आपको जो है किसी बिल्डिंग की इंस्पेक्शन आपको करनी पड़ जाएगी कि इस बिल्डिंग में क्वालिटी क्या है बिल्डिंग की, इसकी पूर कंस्ट्रक्शन हुई है. तो जब आप कंक्रीट के कोर लेंगे ना, कोर कोर नहीं होते आप जो ना किसी से ड्रिल से ना कोर कोर कटर होता है ना, उससे आप जो ना कोर लेंगे बीम से या उसकी स्लेब से जहाँ कंक्रीटिंग हुई हुई है. तो वहां से आप कोर लेके तो आप लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे. तो इफ द कोर टेस्ट एक्सीड्स दिस वैल्यू 2000 को तो देन आपने ना उसको फिर
वो जो कंस्ट्रक्शन है आपने वो उसको पास कर देना है. इफ इट इज बिलो देन दिस वैल्यू, देन दिस विल बी पुअर स्ट्रेंथ कंक्रीट, फिर जो ना बिल्डिंग फेल है. ठीक है ना. तो इधर उसके लिए फिर रीइंफोर्समेंट फर्दर आप उसको वो करनी है. उसको रिक्वायर्ड है कि जैकेटिंग से या देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसेस टू टू क्या कहते हैं इसको, उसको बोलते हैं नॉट रीइंफोर्स्ड, टू मेक देम वर्केबल अगेन. आप जो ना मतलब आपकी जो उसकी जो सर्विसबिलिटी है उसकी बिल्डिंग की, उसको रिस्टोर करने के लिए आपको बिल्डिंग बिल्डिंग में रेट्रोफिटिंग टेक्निक्स यूज करते हैं. हाँ, दैट इज नॉट द रेट्रोफिट. तो रेट्रोफिट आपको करनी पड़ेगी टू रिस्टोर इट इनटू सर्विसेबल स्टेट. तो उसके लिए ना आपको जो ना ये काम करना पड़ेगा. इधर और उस बिल्डिंग को अबंडन करना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा. देयर आर टू ऑप्शंस. ठीक है ना. इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, आप देखो ना कितनी जरूरी है स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट. ठीक है ना. और अभी आप बता रहे थे कि वी टॉक्ड अबाउट द 3000 2000 रेंज सर बिटवीन दिस. 122 सर. ओके. तो बेटे ये जो है बेसिकली 2000 तक हमें एक्सेप्टेबल है. ठीक है ना. होती नहीं है. दैट इज द एक्सेप्टेबल रेंज. And that you can call it the strength of the concrete, but is not the normal. That is the acceptable range. 2000 3000, 3000 to 4000 is the normal strength concrete. समझ आ रही है ना. 4000 to 6000 is a good strength concrete. इसको हाई स्ट्रेंथ नहीं बोलते, गुड स्ट्रेंथ concrete. क्या बोलते हैं? गुड स्ट्रेंथ. Good strength concrete. And then the 6000 plus is the high strength concrete. अब जो है आपके पास जो है ना, जो अब मेनली जो है ना आपके पास जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट होती है, प्री स्ट्रेस समझते हैं, एक होती है आरसीसी. आरसीसी में जो है रीइंफोर्सिंग बार हम आप ऐड करते हैं ना. क्या करते हैं? रीइंफोर्समेंट आप ऐड करते हैं. आपने देखा है आरसीसी, ये स्ट्रक्चर जो आजकल बनी होती है ना, ये जो यस सर, ये देखिए सर. आपने ये जिसमें जो ना बार्स होते हैं, तो एक किस्म के बार्स हम ना टेंडेंस के तौर पर यूज करते हैं. दैट इज नोन एज दी प्री स्ट्रेस कंक्रीट. प्री स्ट्रेस को ना आप आगे जाके पढ़ेंगे वंस व्हाइल स्टडीइंग दी रिइंफोर्स कंक्रीट. आप उसमें प्री स्ट्रेसिंग भी आपका एक टॉपिक है, उसमें आप डिटेल में देखेंगे. तो आप ये जो ब्रिज होते हैं मेनली ऑलमोस्ट 90% ऑफ ब्रिज इन पाकिस्तान आर मेड ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट. ठीक है. अब वो जो प्री स्ट्रेस के लिए बेसिक जो कंक्रीट की रिक्वायरमेंट है, दैट मस्ट बी मिनिमम कंक्रीट मस्ट बी 6000 psi. समझ आ रही है ना आपको. अब जो प्री स्ट्रेस के जो ब्रिज होते हैं, तो उसके लिए कितनी है? 6000 psi है. तो अब उधर जो लोग काम कर रहे हैं, आपके पास लेबर जो वर्क कर रही होती है, या आपके पास जो इंजीनियर्स होते हैं, तो दे मस्ट बी स्किलफुल. दैट द कंक्रीट मस्ट फॉल above that value, above than 6000 psi. अगर इससे ऊपर जो ना वैल्यू नहीं आएगी तो पता पता क्या होगा? फिर जो प्री स्ट्रेस का जो बॉन्ड होगा उसमें जो ना वो प्रॉपर नहीं होगा. एंड देन आफ्टर सम टाइम देन ब्रिज कुड कोलैप्स. समझ आ रही है ना आपको. तो ये बड़ी जरूरी है. तो इसलिए यू ना आपने देखना है कि और सम टाइम जो है, अब जो कंक्रीटिंग हो रही होती है ना, तो वो बहुत एक्सपेंसिव किस्म का जो ना मटेरियल यूज कर रहे होते हैं उसमें. तो टू टेन दिस वैल्यू, कौन सी किस वैल्यू को? ये जो 6000. 6000 वैल्यू को. और उसके लिए जो मिक्स डिजाइन होता है ना, उसका भी जो इंजीनियर्स होते हैं ना, जो फॉर एग्जांपल मेरे पास आएगा मिक्स डिजाइन, तो जितना बिल्डिंग का डिजाइन के पैसे मैंने लेने हैं, तो उतने मिक्स डिजाइन के पैसे जो ना इससे ज्यादा मैं ले लूंगा. हालांकि जस्ट हाफ एन आवर में हो जाएगी. समझ आ रही है ना आपको. मैं बताऊंगा कैसे इसको मिक्स डिजाइन करते हैं. वेरी सिंपल. लेकिन अब देखो कि वो बड़ी छोटी सी चीज है और लोगों को नहीं पता. और जो इंजीनियर्स होते हैं, मोस्टली 90% ऑफ इंजीनियर, और मैं बेट करता हूँ इस पे, कि दे डोंट नो द मिक्स डिजाइन. इफ दे नो द मिक्स डिजाइन बट दे डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट दी 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 कैलकुलेशंस. ठीक है ना. तो इट्स वेरी सिंपल. और उसको जो ना हम अगली जो क्लासेस हैं उसमें जो ना उसको डिटेल डिस्कस करने वाले हैं. और काइंडली आपने क्लासेस मिस नहीं करनी. ठीक. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. मिक्स डिजाइन जो है ना, दैट इज द कल्मिनेशन ऑफ योर कोर्स. अगर आपने मिक्स डिजाइन नहीं पढ़ा तो देन आपको कंक्रीट पढ़ने का कोई फायदा नहीं. ये तो प्रॉपर्टीज आप किताब से भी सीख सकते हैं.
सही है ना, देयर आर सो मेनी वीडियोस अवेलेबल, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। तो देन जनरली आपने जो ना कंक्रीट, जो स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म ऑफ एट द डे, 28 डेज पे हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है ना, रिप्रेजेंट होती है 28 डेज पे। क्यों होती है भाई? 98% उसने अचीव कर ली होती है सर। एग्जैक्टली, मोस्टली जो स्ट्रेंथ है वो 28 डेज पे अचीव हो जाती है, तकरीबन 95% तक या इससे ज्यादा तक। बट देयर मस्ट बी अ रेफरेंस वैल्यू होनी चाहिए थी ना, मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी कंक्रीट कास्ट होती है ना, फॉर एग्जांपल जो ना कहीं पे भी कंक्रीट है, तो वो कोई जो ना 50 डे पे मेजर कर रहा है, और उसकी जो स्ट्रेंथ है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ है, वो टाइम डिपेंडेंट है ना। तो वर्ल्ड वाइड ये डिसाइड हुआ, कोड डिसाइड हुआ कि द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट व्हेन यू डिजाइन ए स्ट्रेंथ पैरामीटर, दैट डिजाइन स्ट्रेंथ से क्या मुराद है, व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ योर कंक्रीट एट 28 डेज। मतलब आप उसके हिसाब से ना आप पैरामीटर्स मिक्स, आप जो ना आप क्या करते हो, सेट करते हो। तो then that concrete has a design value at a 28 days। समझ आ रही है ना? और मेनली 7 days जो है उस पे भी हम टेस्ट करते हैं at 7 day। the strength are often estimated to be 75% of the 28 days strength। 28 days पे स्ट्रेंथ पे जितनी होगी उसके 75% जो है ना कितना अचीव हो जाएगा उसकी जस्ट 7 डे पे। while at 56 day or 90 day the strength are about 10 to 15% greater than the 28 day strength। समझ आ रही है ना? अच्छा, similarly the compressive strength of the concrete is also a fundamental physical property frequently used in design calculation of bridges, building and other structures, just we talked about the most general use strength has a compressive strength value between megapascal। क्या आप देखो यहाँ पे 40 megapascal था ना, between 20 to 40 megapascal, तो 3000 to 6000 वैल्यू हम यूज करते हैं। above 6000 जो है psi में ना, and then there is a compressive strength of the of 70 to 70 megapascal to 100 megapascal जो है ना, ये भी यूज होती है। और ये स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिजेस, हाई राइज बिल्डिंग में ये यूज करते हैं, ठीक है ना। आपने पेट्रोनस टावर देखी मलेशिया में? बच्चों, हेलो गाइस, नहीं देखे सर। नहीं देखे? अच्छा, वैसे नहीं नहीं, उस पे तो वीडियो में देखे होंगे। Okay, I had an experience to visit the guy who designed mix for that tower. Those towers are made of concrete, ठीक है। तो उसमें जो स्ट्रेंथ थी, तो वो जो है कितनी थी, दैट वाज 80 मेगापास्कल, ठीक है ना। हाई राइज टावर्स हैं, और उसकी मेरे ख्याल में जो ना 447 मीटर हाइट है उसकी। कितनी है? 4047 मीटर आई गेस, इतना मुझे अभी तक याद है। तो सिमिलरली द फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ और मॉडुलस ऑफ रप्चर। मॉडुलस ऑफ रप्चर क्या होता है बेटे? जी, सर ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे मटेरियल रप्चर कर जाता है। मॉडुलस सर ऑफ इससे रप्चर बेंडिंग स्ट्रेंथ का पता चलता है सर। एग्जैक्टली। ये जो है ना बेसिकली जो फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ है, दैट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रप्चर। आपने जो ना, वैसे क्या होता है, आप जैसे ये लिखते हैं ना, स्ट्रेस इज इक्वल टू एम वाई ओवर आई, क्या होती है ये? आपने यस पढ़ा है? सर, यही है सर। यस सर, पढ़ा है। ये फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है सर। दिस इज आल्सो नोन एज मॉडुलस ऑफ रप्चर। क्या इसको क्या बोलते हैं? ये जानबूझ के मैंने लिखा है, this is modulus of rupture। Sometimes such strength is known as modulus of rupture. Is written as modulus of rupture is always known as modulus of rupture। Sometimes में नहीं,
ठीक है ना, सम टाइम इट इज रिटन एज मॉडुलस ऑफ रप्चर। तो इज आल्सो यूज टू डिजाइन इम्पेयरमेंट। जो इम्पेयरमेंट आपके डिजाइन करते हैं ना, आपने देखा होगा रोड में जो ना डिजाइन हो रही होती है, तो उसमें मॉडुलस ऑफ रप्चर अपनी स्ट्रेंथ की जो ना मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और स्लेब डिजाइन करते हैं ग्राउंड में, क्यों करते हैं भाई? बेसिकली ऐसा होता है ना, आपके पास रोड्स हैं, तो रोड्स में क्या होता है, स्लेब कंक्रीट रोड की बात कर रहा हूँ मैं, कंक्रीट के पेमेंट में आपने देखा कंक्रीट का रोड, तो जब आपके पास जो ना गाड़ी का टायर जो ना गुजर रहा होता है यहाँ से, व्हीकल का लोड लग रहा है ना, इधर ऐसे लग रहा होता है ना, इस पे ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो नीचे जो है ना, इसे क्या है, इधर स्पॉट इधर मिली हुई है, तो ये जो कंक्रीट है, तो ये जो ना इस पे टेंसाइल, इस पे फ्लेक्सर स्ट्रेस पड़ती है, क्या पड़ती है, फ्लेक्सर स्ट्रेस पड़ती है। तो ये जो है ना, जो एजेस है ये बेंड होती है, ऐसे ही है। और नीचे वाले जो पोर्शन है इसमें क्या पड़ती है, टेंशन पड़ती है, ऊपर वाले पोर्शन में क्या पड़ती है, कंप्रेशन पड़ेगी। इन केस ऑफ स्लैब एट ग्राउंड, तो उसमें जो है उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं मॉडुलस ऑफ रप्चर। सिमिलरली आपने देखा यहाँ पे जो ना हमारे पास क्या है, बीम है, बीम में भी ऐसी पड़ती है ना मॉडुलस ऑफ रप्चर। दिस इज स्मॉल बीम, कंक्रीट का बीम है, ठीक है ना। तो अब देखो 2 पॉइंट लोडिंग है, 2 पॉइंट लोडिंग है ना, दिस इज नोन एज 2 पॉइंट लोडिंग। अगर ये एक ही बार होता ना बीम सेंटर में, तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, 1 पॉइंट लोडिंग। सॉरी, this is known as, if there is a two loading acting, then this is known as 3 point. And then if it is acting at a single load, तो आपके पास रिएक्शन भी है, इस साइड पे भी रिएक्शन है, इस साइड पे भी रिएक्शन है, then that is known as just एक मिनट मैंने साइड में रखी है आपकी 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। ओके, 3 पॉइंट, सॉरी। Here is the आपके पास there is a two reactions. If there is a 1 point acting, so then this will be 3 point. In case of 2 point loading, and then there are two reactions, then there will be the attachment is known as 4 point. ठीक है, अच्छा। The compressor strength can be used as an index of the flexure strength. Flexure strength को कैलकुलेट कर सकते हैं compressor strength से भी। तो if the compressor strength value has some value, it is written in megapascal, तो then 0.7 to 8 times the square root of compressor strength is the flexure strength. आपको फ्लेक्सर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मेजर करने की जरूरत नहीं है, यस जस्ट यू कैन कैलकुलेट द फ्लेक्सर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट थ्रू मेजरिंग द कंप्रेसर स्ट्रेंथ। आपकी कंप्रेसर स्ट्रेंथ फॉर एग्जांपल आपके पास वैल्यू कितनी है, 20 मेगापास्कल, तो 20 मेगापास्कल का आप क्या ले लें, अंडर रूट ले लें, और इसको मल्टीप्लाई कर लें 0.7 के साथ, क्या किसके साथ, 0.7 और 0.8, ठीक है ना। तो देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ flexure strength. Similarly, if it is the compressor strength is in pounds per square inch, pounds per square inch में है, psi में है, तो then if it is 3000 psi, तो it is the 7.5 to 10 times square root of compressor strength. तो इसको क्या कर दो, आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट को, then you will get the flexural strength of a concrete. क्या जवाब आएगा इसका, क्या आता है, इसका क्या आता है, बताओ जरा, शाबाश। एनीवन, किसी को कंफ्यूजन है? सर ये 3000 का 547 आ रहा है सर। 547, oh very good, almost 550, हाँ। यस सर। ओके, और सर ये 20 का 3.13।
कितना? 3.13। 3.13। अच्छा, नॉर्मल मैं आपको टिपिकल वैल्यू बताऊं। टिपिकल वैल्यू जो है ना, फॉर फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ टिपिकल वैल्यू इज, आप वही रिपीट करोगे फॉर फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ, आपको फिर भी अंदाजा भी होगा ना। यहाँ पे आपकी जो लेबोरेटरी है, लैब है कंक्रीट की, तो उसमें जो एक्सपेरिमेंट रहते हैं, तो वापस जब आओगे तो देन वी विल एक्सपोज यू टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। तो उस एक्सपेरिमेंट में फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ आपने नोट करनी है ये वैल्यू। आपके पास नॉर्मल जो वैल्यू है 4,405 450 450 टू 600, ये रेंज है किसकी? फुल एक्सियल स्ट्रेंथ की। समझ आ रही है? अच्छा, इस केस में कितनी रेंज है भाई? 3.5 टू 4.5 मेगा पास्कल। ठीक है, इज इट क्लियर? What are the factors affecting the strength of the concrete? There are so many factors affecting the strength of the concrete. We have discussed a little bit, and then we can just in subsequent slides we can discuss in detail again. Among them, the most important factor is the water cement ratio. समझ आ रही है ना? The strength of the concrete, when we talked about strength of the concrete, then the first and foremost factor that affect the concrete, the strength of the concrete is its water cement ratio. ठीक है? Water cement ratio mean water content or the cement content. समझ आ रही है ना? And then there is another factor that affect the concrete properties. The strength of the concrete is the compaction of the concrete. आप उसको properly compact नहीं करोगे तो उसकी strength फिर भी आपको वो होगी. Then the type of the cementing material, the amount of the cementing materials, then the type of the aggregates, air content in the concrete, then the admixtures, whether these are the chemical admixtures or known as sometime there are मिनरल एडमिक्सर्स। मिनरल एडमिक्सर्स में क्या होंगे आपके पास? आपके पास फ्लाई ऐश है, सिलिका फ्यूम है, आपके पास जो ना राइस हस्क ऐश है, then you have the ground granulated blast furnace slag, which is also known as GBFS, GGBFS। तो फर्स्ट जो है वाटर टू सीमेंट रेशियो जो है, जो कंप्रेसर स्ट्रेंथ दैट a concrete achieves is influenced by the water to cement ratio. The extent to which hydration has progressed, the covering and environmental condition and age of the concrete. ये जो है ना, सारा वो करती है, क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ को क्या चीज इम्पैक्ट करती है? Apart from this water cement ratio, the extent to which hydration has progressed mean age of the concrete, mean and the covering and environmental condition. Covering भी उसको जो ना उसकी अफेक्ट करती है. The relation between ये जो है यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं हम, वाटर सीमेंट रेशियो की मेजर रिलेशन क्या होगी? ये रिलेशन होगी स्ट्रेंथ के कंक्रीट के साथ, इस किस्म की आएगी, इनवर्सली रिलेटेड। हायर द वाटर सीमेंट रेशियो, लोअर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। समझ आ रही है ना? तो जितना इसको जो है क्या है, इनवर्स रिलेशन है, ऐसे ही है ना। और ये शेडेड वैल्यू दे रही है ना आपको, तो ये टिपिकल वैल्यूज हैं, तो इसमें रेंज आती है। फॉर एग्जांपल एट 35.35 वाटर सीमेंट रेशियो, सो वी कुड गेट 40 around 35, sorry, 37 say 37 to, इसके ऊपर ये फॉल करेगा ना, अबाउट 68। तो ये रेंज है इसके बीच में जो स्ट्रेंथ है, हम जो है ना इस पे इतना स्ट्रेंथ हम अचीव कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अदर फैक्टर्स, डिपेंडिंग अपॉन अदर फैक्टर्स। तो मेनली आप जो है द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। अब जो है जस्ट इन आवर प्रीवियस स्लाइड्स वी टॉक्ड अबाउट द हाउ वाटर सीमेंट रेशियो अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। आपके पास जो है ना बेसिकली क्या होते हैं,
कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट्स जब बनते हैं ना, तो वो जब उसकी प्रेसिपिटेशन होती है, तो देन इस किस्म का जो प्रेसिपिटेशन होती है इन कंक्रीट दैट सराउंड्स दी ग्रेवल्स, तो आपके पास एग्रीगेट्स को सराउंड करते हैं ना, तो व्हेन these calcium silicate hydrates if they are fartherly apart, एक दूसरे से दूर दूर पड़े हों, तो उस केस में क्या होगा, उसके बीच में जो बॉन्ड है वो ठीक नहीं होगा. There will be a inferior kind of a bond in between these particles, these strength giving product. ठीक है ना, जब inferior bond होगा तो वो जेल नहीं कर पाएंगे ना, तो then strength कम हो जाएगी. तो if the water cement ratio is low, this mean इसकी जो concentration है वो ज्यादा होगी फिर, and then the bond between them will be higher, superior, because they will be closely spaced to each other. आपको समझ आ रही है बच्चों? Are you getting my point? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ पता लग रहा है आपको कुछ? यस सर. अच्छा, आपको जो है ना, मेरे ख्याल में कोई इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा. ऐसी है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है. अच्छा, मैं तो खुद जो है थोड़ा बोर होता हूँ ये ऑनलाइन पढ़ा के, क्योंकि आप बैठे नहीं हैं तो आपको जो है मजा आता है. वैसे ये जो ना इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. अच्छा बिल्कुल सर. अच्छा, चलें कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश करो ना थोड़ा सा, ठीक है ना. आप ज्यादा स्लाइड पे लिखा हो तो आपको मसले होते हैं, या मैं इसको जो है कम करूं? नहीं सर, डिटेल्ड हो स्लाइड. अच्छा ठीक है. अच्छा, स्ट्रेंथ, अच्छा, जो है वाटर सीमेंट रेशियो जो है, इससे क्या होता है, दिस इज वर्थ टू नोट दैट स्ट्रेंथ increase as water cement ratio decrease. These factors also affect the flexural and tensile strength and the bond of concrete to steel. जो steel जो strength है, the reinforcing bar में concrete की strength अगर कम होगी, then there will be a lesser kind of a bond between steel and concrete. जो concrete को जो bond होता है ना, वो भी just like aggregate को के लिए जो concrete का bond होता है, ऐसे ही होता है. ठीक है, तो वो डिपेंड करता है इंटरफेशियल जोन ऑफ द सीमेंट पेस्ट. तो अगर कंक्रीट की स्ट्रेंथ अच्छी है तो उसका बॉन्ड भी अच्छा होगा. ठीक है ना, तो अगर बॉन्ड अच्छा होगा स्टील और कंक्रीट में, आपकी जो रिइंफोर्समेंट है, आपकी जो स्ट्रक्चर है, वो आपको बेटर रिजल्ट देगी. ठीक है ना. सिमिलरली, there is another factor that is very important also, is the compaction of the concrete. The compaction of the concrete increases the density of the concrete. Basically क्या होती है, हम आपको देखो ना, ये बंदा कंपैक्ट कर रहा है किसे, ये वाइब्रेटर यूज कर रहा है ना कंक्रीट में. तो इसमें से कंपैक्शन में क्या होता है, बेसिकली जो इसमें जो एयर है वो निकलती है बाहर. ठीक है ना, आपको वाइब्रेशन होती है, और वाइब्रेशन होके कंक्रीट एंड ग्रेडियंट सेटल्ड होते हैं डाउन द लाइन, ऐसे ही है ना, सेटल होते हैं. और इसमें से जो एयर होगी, बबल होंगे या एयर इंट्रैप होगी, वो जो ना वो क्या होगी, वो स्लोली स्टेडली बाहर निकलेगी. एंड देन द कंक्रीट बिकम मोर डेंसर एंड विल गिव यू बेटर स्ट्रेंथ. ठीक है ना, कंपैक्ट होगी और उसको डेंस देगी. तो इस पे डिपेंड करता है, द प्रेजेंस ऑफ एयर वाइड्स जो है ना कंक्रीट में ग्रेडली रिड्यूस दी स्ट्रेंथ. ऑलमोस्ट द एयर कंटेंट आर मोर देन 5%. ठीक है ना, तो देन इट कुड रिड्यूस द कंक्रीट स्ट्रेंथ फ्रॉम 30 to 40%. आपके पास जो है ना, अगर 3000 आप कंक्रीट अचीव करना चाह रहे हैं, 30 to 40% उसकी कंक्रीट रिड्यूस हो गई है, तो कितनी हो रह जाएगी, लेस देन 2000 हो जाएगी ना. तो बच्चों, आपसे मैं लगा हूं. Yes, sir. तो आपके पास जो है, आपने जो ना अगर 5% एयर जो ना ट्रैप हो गई कंक्रीट में, हनी कमिंग हो गई कंक्रीट की स्ट्रक्चर में, तो वो तो स्ट्रक्चर आपकी किसी काम की नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ तो बहुत कम हो रह जाएगी ना, 2000 से भी नीचे रह जाएगी. तो वो तो स्ट्रक्चर आपकी फेल है फिर, ऐसे ही है ना. तो दैट्स व्हाई कंपैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने कंपैक्शन पे तवज्जो देनी है. आपको इफ द वाटर सीमेंट रेशियो इज लो, तो उसमें कंपैक्शन जो है ना, अगेन बड़ी मुश्किल होती है. फिर उसके लिए प्रॉपर आपको कंपैक्शन देनी पड़ेगी. ठीक है ना.
To make a workable concrete, you need to employ a good water plasticizers. आप कुछ वाटर रिड्यूसिंग एजेंट आप उसमें ऐड करेंगे ताकि वो जो है ना क्या करें उसको, क्या करें बच्चे इसको, ताकि कंपैक्ट करे ना, कंपैक्शन इजीली हो, ठीक है ना। और कंपैक्शन के लिए एक और चीज जरूरी है, दैट कंक्रीट मस्ट बी इन वर्केबल स्टेट। अब अगर आपने जो ना कंक्रीट के 3 घंटे हो गए हैं उसको जो ना वो क्या हुए मिक्स हुए हुए, तो देन उसकी कंपैक्शन कैसे होगी फिर आप बताओ, मुश्किल है ना। यस सर, फिर उसमें वो अल्टरनेटिवली उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी, फिर क्रैक्स डिक्रीज वगैरह करेगी और होगा उसकी कंपैक्ट नहीं होगी ना, वो तो उसकी ऑलरेडी जो ना उसकी सेटिंग हो चुकी है, जो सेटिंग ऑलरेडी शुरू है 30-40% हो चुकी है, तो कैसे कंक्रीट जो ना कैसे उसको जो ना कंपैक्ट करेंगे आप, मुश्किल है ना। हाँ, तो कंक्रीट मस्ट बी इन वर्केबल स्टेट। तो वो जो है कंक्रीटिंग का जो कंपैक्शन प्रोसेस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह मिक्सिंग इंपॉर्टेंट है ना, कंक्रीट प्रॉपर्ली मिक्स हो ना, इसी तरह कंपैक्शन भी इंपॉर्टेंट है। एंड सम टाइम द पीपल एट द नेम ऑफ कंपैक्शन आपको ओवर कंपैक्शन कर लेते हैं, ओवर कंपैक्शन समझते हैं, यस सर, जो ज्यादा टाइम के लिए उस पे वो रखे। ज्यादा टाइम के लिए वाइब्रेटर यूज किया। और कंपैक्शन में ये होता है कंक्रीट फिर सेग्रीगेट हो जाती है। सेग्रीगेशन से ये होगा कि आपके पास जो कोर सेग्रीगेट है वो जो है नीचे बॉटम में बैठ जाएंगे, एंड देन द पेस्ट एंड द वाटर कंटेंट एंड देन द रेस्ट ऑफ द कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स विल कम अप एट द अपर लेवल ऑफ द वो हो जाएगी। और उसमें उस जो सेग्रीगेटेड कंक्रीट है तो दैट हैज नो वैल्यू, उसकी भी स्ट्रेंथ जो है ना, उसकी भी कोई स्ट्रेंथ जो है ना उसकी आप उसका प्रोडिक्ट नहीं कर पाएंगे कितनी स्ट्रेंथ है, और वो प्रॉब्लम कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको जो है वाटर सीमेंट रेशियो पे जो कंपैक्शन जो है आपको जो ना बड़ी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। in full compacted concrete the strength is higher than the insufficiently compacted concrete, just we talked about. And there is a mixed proportion is also important for the strength of the concrete, ठीक है ना। उसका मिक्स प्रोपोर्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपरली मिक्स प्रोपोर्शन इज रिक्वायर्ड फॉर अ गुड स्ट्रेंथ कंक्रीट। पता है आपको मिक्स प्रोपोर्शन क्या होता है जी बच्चों? यस सर, उसमें नॉर्मली ना सर मैं आपको एक चीज बता चलो, 1:2:4 ये रखते हैं ना नॉर्मली। हाँ, यस सर, 1 सीमेंट और 2 सैंड और 4 ग्रेवल। अच्छा, और ये रेशो किसकी है उसकी? अच्छा, आपको मैं एक मजे की चीज बता चलो, दीज रेशियोज आर इन वॉल्यूम रेशो है या आपके पास उसकी रेशो है, वेट की रेशो है? सर ये वेट की है सर। वेट्स की रेशियो है सर। वेट की रेशो है। आपने कंक्रीटिंग होती देखी है, देयर इज ए मेल प्रैक्टिस, वो तो रेडी में इसको मेजर कर रहे होते हैं। कैसे बिल्कुल। मेजर? वो ये सर वो वॉल्यूम यूज करते हैं यूजुअली। रेडी में क्यों करते हैं फिर? सर सर वो उनके पास वहाँ उनका पे एक बैलेंस नहीं हिसाब होता। हो। जी जी बच्चों, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सर अगर अगर रेडी का वॉल्यूम उनको पता हो और मतलब उनको डेंसिटी भी उस चीज की पता हो तो उससे मतलब वो वेट में जा रहे हो, लेकिन वो मुझे तो उसका आप पता जो नहीं। है ना, आप उससे मिस्त्री से बात करो, उसको डेंसिटी को की बात करो, डेंसिटी क्या है उसको, तो उसको क्या पता डेंसिटी क्या है, वो तो आपके सर में बेलचा मारेगा। लाइक सर मैं तो बस अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद इतने स्किल हो। हाँ, ये तो जो है ना, आप देखो ना, ले मैन से कंस्ट्रक्शन करोगे अगर आप जो है ना, मैं इसके लिए बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, आपको सारे ये बताएंगे कि दिस इज वेट रेशो, लेकिन वो मार्केट वो जो है ना साइट पे सुपरवाइज कर रहे होते हैं, और उधर तो वेट रेशो नहीं होती, उधर तो वॉल्यूम रेशो होती है। तो फिर उधर कोई बोलता है जी बच्चे नहीं बात कर रहे। नहीं पता सर इस चीज का। वेर साहिल, साहिल किधर है? साहिल, आर यू इन क्लास?
साहिल, क्या नंबर है इसका? सर 235 सर आपकी आवाज कट रही है। साहिल है? मेहरान साहिल? ये सर है, आई गेस उसका माइक खराब है सर, और सुबह की क्लास में भी उसने कुछ बोला नहीं था। एक्सक्यूज मी सर। जी, सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। वेयर इज मेहरान साहिल? नहीं सर, आपकी आवाज ठीक है सर, आपकी आवाज ठीक आ रही है। ठीक आ रही है? यस सर। अच्छा, तो आपने मेरे रेशियोज पे बात करनी थी हमने, कि ये जो वो है 1:4 रेशो है, हाँ, तो ये जो है, ये तो होती है उसकी वेट रेशो है, लेकिन लोग इसको वॉल्यूम के तौर पर कैलकुलेट कर लेते हैं। बेसिकली ना इसकी एक दो वजूहत है, मैं आपको बताते चलूं। तो पहले ये देख लेंगे ये रेशो है किसके बीच में। वन रेशो इज सीमेंट, दिस वन इज फॉर सैंड, एंड दिस वन इज फॉर ग्रेवल से। ग्रेवल। ठीक है ना, सीमेंट, सैंड एंड ग्रेवल। वेयर इज वाटर? सर वो हम वो 0.6 वाटर टू सीमेंट रेशो रखते हैं, सीमेंट के लिहाज से हम उसका करते हैं वेट। एग्जैक्टली ये कंक्रीट में जो इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं ना, आपने कंक्रीट में कोई चीज भी डालते हैं ना, आप पहले एक बात सुन लें। दिस इज अगेन ए काइंड ऑफ ए थंब रूल। कंक्रीट में आपने कोई मटेरियल भी आप ऐड करेंगे, चाहे प्लस से आप ऐड करते हैं, चाहे आप जो है ना उसमें केमिकल मिक्सर्स ऐड करते हैं, मिनरल मिक्सर्स ऐड करते हैं, आपने उसमें सैंड ऐड करते हैं, कोर्स एग्रीगेट ऐड करते हैं, आपके पास जो है ना वाटर उसमें ऐड करते हैं, ऑल थिंग्स विल बी एडेड विद द रेशियो ऑफ द सीमेंट। ठीक है ना, सीमेंट की रेशियो हमेशा 1 रहेगी, सही है ना। उस रेशियो से आप जो है ना बाकी चीजें ऐड करेंगे। तो आप जो है ना मेन मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है, आपके पास सैंड है और कोर्स एग्रीगेट है, उसकी रेशियो ऐसे 1:4 रेशियो हो जाएगी, और 1:3:6 रेशियो हो जाएगी। ठीक है ना, जो भी मतलब देर आर सम लेमैन रेशियोज। ठीक है ना, 1:3:6 क्या होती है जो भी है। ठीक है, मेन रेशियोज पे बिलीव नहीं करता, और किसी इंजीनियर्स को भी नहीं करना चाहिए। पता क्यों नहीं करना चाहिए, मैं आगे जाके बात करता हूँ। अच्छा, ये जो रेशियोज हैं, ये जो अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट है उसने डिजाइन की हैं कि आपके पास जो है सम टाइम एट द टॉप ऑफ द हिल स्टेशंस, बहुत ही रिमोट एरिया में देयर इज नो इंजीनियर्स, और या इंजीनियरिंग की स्किल्स नहीं है, वहां पे जो मिक्स डिजाइन होता है ना, जो कोर्स एग्रीगेट के जो साइज को मेजर करे, कोर्स एग्रीगेट की ग्रेडेशन को मेजर करे, और इसकी फाइनेंस मॉडुलस को मेजर करे, सैंड की इससे मॉइस्चर कंटेंट को मेजर करे, तो देन फ्रॉम दोज, और इसकी कंपैक्टेड डेंसिटी को मेजर करे, देन यू कैन कैलकुलेट द मिक्स डिजाइन। तो ये इस किस्म की आपके पास मेजरिंग, आपके पास फैसिलिटीज ना हो, तो देन दे गिव अस ए काइंड ऑफ ए गाइडलाइन। हाँ, जो आप कहते हैं उसको, जैसे कहते हैं ना 30 ग्रेड कंक्रीट है, 40 ग्रेड कंक्रीट है, या इस किस्म की जो गाइडलाइन है, या 1:4 रेशियो से कितनी स्ट्रेंथ पड़ेगी, या 1:1 रेशियो से क्या आएगा, सम टाइम ऑफ दीज रेशियोज। तो उन्होंने गाइडलाइन दी है कि इफ द कंक्रीट इज प्रॉपर्ली कंपैक्टेड, हाँ, ठीक है, इफ वाटर सीमेंट रेशियो इज प्रॉपर्ली एडजस्टेड, इफ वी यूज सच काइंड ऑफ मिक्स, जस्ट 1:4 रेशियो से आप मिक्स करेंगे, तो मेनली मोस्ट ऑफ द केसेस, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द केसेस, तो इसमें जो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो आपको नियर फॉल करेगी जो जो आप मिक्स डिजाइन से अचीव करना चाहते हैं। समझ आ रही है ना? तो दैट्स वाई जो लोग होते हैं ना मेनली, तो वो आपको जो है मिक्स डिजाइन पे नहीं जा रहे होते, तो रेदर देन जस्ट दे आर कीपिंग दी रेशियोज। ठीक है ना, इस रेशियो से कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये रेशियो है, इससे आप कर लो तो कंक्रीट आपकी अच्छी बन जाएगी। ठीक है, तो तो अब सर ये वॉल्यूम का सर, वॉल्यूम और वेट का। वॉल्यूम वेट का बताता हूँ ना, उसी पे आ रहा था मैं। अच्छा, मेनली ना आप देखो ना, लिसन,
अब जो वेट का, अब जो सैंड है ये ग्रेवल है, इसकी जो डेंसिटी है ना कितनी होती है, पार्टिकल डेंसिटी 2.4 टू 2.6, कितनी होगी, 2.4 टू 2.6। तो इसको अगर वेट रेशो से आप कैलकुलेट करो या डेंसिटी रेशो से, बात एक ही है, एक नहीं है, एक ही है ना। आप उसका जो ना, यस सर। आप पानी का वेट ले लो या उसका वॉल्यूम ले लो, उसको रिप्लेस करने के लिए दूसरे पानी के साथ, बात सेम है, समझ आ रही है ना। इफ यू आर यस रिप्लेसिंग सर। वाटर विद ऑयल, तो उसमें जो है ना आप वॉल्यूम से रिप्लेस करो ऑयल को पानी के साथ, तो देन आपके पास फिर फर्क पड़ सकता है, ठीक है। तो वेट में फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप जो सैंड और कोर्स एग्रीगेट को अगर बाई वॉल्यूम रिप्लेस कर रहे हैं, तो उसके वेट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, या वेट से रिप्लेस कर रहे हैं उसके वॉल्यूम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, समझ आ रही है ना। इट विल हैव ए सेम काइंड ऑफ वॉल्यूम, समझ आ रही है ना। अब जो सीमेंट है उसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, 3.15 सर समथिंग। 3.15, 3.15, दिस इज पार्टिकल डेंसिटी। अब इसकी जो बल्क डेंसिटी है वो तो बल्क में होता है ना, हम इस्तेमाल करते हैं इसको, सैंड और ये भी बल्क में इस्तेमाल होगा, पता है आपको। तो बल्क में इसका जो होगा, आप जो है ना 0.6 से मल्टीप्लाई करें, तो इसकी जो डेंसिटी है वो मजीद कम हो जाएगी। बल्क बल्क वेट कितना होता है इसका एग्रीगेट्स का, 1600 केजी पर क्यूबिक मीटर, कितना होगा, 1600 केजी पर क्यूबिक मीटर। सिमिलरली आपके पास 3.15 डेंसिटी किसकी है, सीमेंट की है सीमेंट पार्टिकल की है। अब बल्क सीमेंट वॉल्यूम की कितनी डेंसिटी होगी, बल्क सीमेंट जो जब वॉल्यूम में हो, बैग में सीमेंट पड़ा होता है, तो दिस इज पार्टिकल डेंसिटी 3.15। तो आपको बल्क सीमेंट का वॉल्यूम की डेंसिटी कितनी होगी, तो आप इसे मल्टीप्लाई करें वाटर की डेंसिटी से, डेंसिटी ऑफ द वाटर, इट वाज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सीमेंट, ठीक है, 3.15। इसको वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव यू पार्टिकल डेंसिटी ऑफ ए सीमेंट, ऐसे ही है ना। तो उसको आप किससे मल्टीप्लाई करें, 0.6 से और 0.5 से, 50% डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी इससे। तो इट विल गिव यू अराउंड 1700 केजी पर क्यूबिक मीटर। तो किधर गया यार, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज हैं, 1700 एक पड़ रही है, दूसरे 1600 पड़ रही है, तीसरा जो है ना सैंड ऑलमोस्ट आपको 1500 और 1400 पड़ेगी। तो दीज काइंड ऑफ है मटेरियल जो है ना आपके पास काइंड ऑफ सेम डेंसिटी उस रेंज में आ जाएगा। तो जब सेम डेंसिटी रेंज में आ जाएगा, तो देन उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप वेट से उसको जो ना कर रहे हैं या उसको वॉल्यूम से कर रहे हैं। ये बात जो ना आप इसमें गौर कीजिएगा, ठीक है बच्चों, यस सर समझ आ गई है सर। समझ आ गई है ना। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप वॉल्यूम से कर रहे हैं या वेट से कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली वेट से करना चाहिए ताकि इसमें जो है ना आपको सही तौर पे अंदाजा हो। लेकिन फिर भी आपको जो ना ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये जो ना किससे, और देयर आर व्हाट काइंड ऑफ मेल प्रैक्टिसेस हैपनिंग। और एक और इशू है, मैं आपको एक और चीज बता चलूं कि जो सैंड है उसमें बल्किंग ऑफ सैंड होती है। बल्किंग ऑफ सैंड समझते हैं क्या होती है वजह, क्वेश्चन रिपीट करें सर। बल्किंग ऑफ सैंड, जो हाँ सर। सैंड है ना, तो सैंड बल्क होती है, बल्किंग ऑफ सैंड होती है, नहीं पता, चलें खैर है, मैं बता रहा हूँ, नोबडी नोस, बताओ। अच्छा, नहीं पता सर। नहीं पता, अच्छा अच्छा, कोई मसला नहीं, फिर मुझसे पूछा करो ना। बल्किंग ऑफ सैंड जो है, अब जो सैंड का जो वॉल्यूम है, अगर इफ इट इज ड्राई फार्म, तो उसका वॉल्यूम बहुत कम होता है, मतलब नॉर्मल वॉल्यूम होता है सैंड का, ठीक है। तो सैंड अगर मॉइस्चर गेन करे, तो उसका वॉल्यूम जो ना इंक्रीज हो जाता है। तो कितना इंक्रीज होता है आपको मैं बताता हूँ।
आपने मॉइस्चर कंटेंट पढ़े होंगे सॉइल में। यस सर, पढ़े हैं सर। अच्छा, मॉइस्चर कंटेंट और सैंड के वॉल्यूम के बीच में अगर आप वॉल्यूम नहीं सॉरी इसके वॉल्यूम के बीच में अगर उसको हम ड्रॉ करें, क्या कहते हैं, रिलेशन ड्रॉ करें, तो वॉल्यूम ऑफ सैंड इज गेटिंग राइजर 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 राइजर। हाँ, और उसके बाद कुछ देर बाद फिर मॉइस्चर कंटेंट अब फिर रेज होंगे, तो फिर क्या होता है, फिर ड्रॉप होता है। तो मैक्सिमम जो है ना 4% मॉइस्चर कंटेंट पे इसका मैक्सिमम वॉल्यूम मिलता है। कितना वॉल्यूम इंक्रीज होता है ओरिजिनल से? तो ऑलमोस्ट 26%, ऑलमोस्ट 26%। तो दिस मीन कि आपके पास इफ द मॉइस्चर कंटेंट इज 4% और 3.3 मोर देन 3%, देन यू विल हैव ए ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ए सैंड। आपके पास जो है ना वॉल्यूम सैंड का ज्यादा हो जाएगा। और वो वॉल्यूम पता है क्यों ज्यादा होता है? अब जो कि मॉइस्चर कंटेंट जो है ना, जब सैंड अब्जॉर्ब करती है, सैंड सैंड अब्जॉर्ब नहीं कर रही होती, मॉइस्चर कंटेंट जब सैंड्स को अवेलेबल होता है, तो ड्यू टू सरफेस टेंशन सैंड के जो पार्टिकल हैं वो फार्दरली अपार्ट होते हैं एक दूसरे से। एक पार्टिकल है ना, सैंड पार्टिकल है जो ऐसे पड़े हैं ना एक दूसरे के साथ जुड़ के, तो अब देयर इज ए मॉइस्चर, तो वो जो पार्टिकल क्या होंगे कि थोड़ा से क्या होंगे, स्वेल हो जाएंगे, मतलब फर्दरली अपार्ट होंगे। इट्स इंटरनली स्वेल नहीं होंगे, एक्सटर्नली स्वेल होंगे। ठीक है ना, इसके बीच में क्या आ जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो 4% वाटर मॉलिक्यूल आने से इसका मैक्सिमम आपके पास बल्किंग होती है। तो इस तरह बाई वॉल्यूम आप मेजर करने से आपके पास जो है ना कम सैंड पड़ेगी कंक्रीट में, इफ द मॉइस्चर कंटेंट आर मोर इन सैंड। समझ आ रही है ना? दिस इज अ फ्लॉ। यस सर, समझ आ गई सर। मैं रिपीट करूं इसको, क्लियर है ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, दैट्स ग्रेट। और बल्किंग ना आप इसको पढ़ लो, बल्किंग ऑफ सैंड क्या होती है, ठीक है ना। मजीद इस पे कौन से फैक्टर होते हैं, कैसे डिपेंड करती है, ये आपको पता होना चाहिए। सही है ना? और सम टाइम जो ना आपके पास बल्किंग हो कंक्रीट में, सैंड में, और वो अपेरेंटली हो, तो वो जो है आपको आपको तो अंदाजा नहीं होता कि बल्किंग है कि नहीं है। और लोग तो उसको जो ना बाई वॉल्यूम्स को जो ना वो उसमें डाल रहे होते हैं, तो उसमें कंक्रीट तो उसमें अंदर तो मॉइस्चर थी, तो मॉइस्चर की वजह से उसकी बल्किंग हुई हुई थी। So in that case, you will get lesser amount of sand in concrete. आप originally ना effectively आप जो है सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े कम होंगे, और आपका जो मिक्स प्रोपोर्शन है आपने तो रखा है 1:4 रेशो, तो वो 1:1:4 रेशो है बेसिकली। ऐसे हो जाएगा ना, सैंड तो कम पड़ रही है ना। समझ आ रही है ना? अच्छा, उसका सोल्यूशन क्या है वैसे? तो आप मुझसे पूछ लेते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द सोल्यूशन अगर ब्लॉकिंग हो तो? सर उतना ही हम कंक्रीट में पानी कम यूज करेंगे सर। वो तो एक सोल्यूशन है पानी के लिए, तो आपने कर दिया, सैंड के केस में क्या करोगे? सैंड कम पड़ गई ना, जितने जितनी बल्किंग हुई हुई है ना, आपने बाई वॉल्यूम आपने डालनी है ना। आप तो बाई बाई वॉल्यूम वेट बाई वेट डाल रहे हैं, तो फिर तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इफ यू आर एडिंग बाई वॉल्यूम जस्ट 1:4 रेशो, तो उस केस में आपने जितने परसेंट उसके स्वेल हुई हुई थी, 20% 30% जितना भी आपने जो बल्किंग आपने मेजर की होगी ना, तो उस हिसाब से आपने इतनी सैंड आपने एक्स्ट्रा ऐड करनी है। ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, और strength of the concrete is always depending, another factor that is dependent upon the apart from compaction is the water content. Water content की just water cement ratio में translate हो गया, and then uh, जो है type of the cement है इस पे डिपेंड करता है, and then the amount of the cement है उस पे डिपेंड करता है। high the amount of the cement, high will the strength। क्यों हाई होगी स्ट्रेंथ? कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट्स ज्यादा होंगे ना फिर हाई सीमेंट है तो, और गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट है तो उसके कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट ज्यादा होंगे। समझ आ रही है ना?
एंड समटाइम ये एग्रीगेट की स्ट्रेंथ अच्छी है तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ अच्छी होगी. इफ देयर इज एग्रीगेट हैज एंगुलरिटी, रफ टेक्सचर, देन दिस एग्रीगेट विल एनहांस द आईटीजी बॉन्ड. जो आईटीजी जो बॉन्ड है उसको एनहांस करेगा. तो जब वो बॉन्ड एनहांस होगा तो ऑफ कोर्स इट विल एनहांस द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट. समझ आ रही है ना? सैंड में जो है आपके पास इम्प्योरिटीज, आपके पास जो है ऑर्गेनिक कंटेंट कम हो, जितने कम होंगे तो देन दिस विल गिव यू बेटर स्ट्रेंथ. क्योंकि इफ देयर इज आर ऑर्गेनिक कंटेंट इन 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 सैंड में समटाइम होते हैं ना, कुछ क्लेई होते हैं, कुछ ह्यूमस या इस किस्म के कंटेंट होंगे. तो वो क्या काज करते हैं, दीज कंटेंट डिके हो जाते हैं जब कंक्रीट बनती है ना उसके बाद. चूंकि वो है ना क्या है बेसिकली ऑर्गेनिक है ना, तो डिके हो जाएंगे कुछ कुछ अरसे बाद. जैसे कुछ कुछ लीफ है, कुछ लीफ के जो ना या इस किस्म का जो कुछ जो भी वो है इसमें हुमस. हुमस समझते हैं? ए काइंड ऑफ सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल. हुमस, HUMS. क्या बोलते हैं इसको? हुमस, HUMUS. हुमस. ये जो है ओके, स्पेलिंग दोबारा चेक कर लो यार. अच्छा, तो ये इस किस्म के जो बेसिकली ऑर्गेनिक सॉइल होती है वो भी कम, उसके भी कंटेंट उसमें होते हैं सैंड में समटाइम ना. इसको भी हमारे पास एक टेस्ट है, टेस्ट टू चेक द ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज इन सैंड. ठीक है ना? तो उस टेस्ट से हमें पता अंदाजा होता है कि कितने जो है ना इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट है सैंड में. तो ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा होंगे तो देन आफ्टर सम टाइम इन कंक्रीट दोज कंटेंट विल बी डिकेड एंड विल कॉज कैविटी इनसाइड द कंक्रीट, hardened कंक्रीट. ठीक है? तो ये सारे मिला के these were the factors affecting the strength of the concrete. The next topic is the modulus of velocity. So we will keep this topic for next class. तो मंडे को फिर ले रहे हैं क्लास. ठीक है सर, काइंडली आज और कल की लेक्चर स्लाइड्स अपलोड कर दें. मैं कर लेता हूँ. ठीक है, तो कोई क्वेश्चन हो? सर मेरा क्वेश्चन था कि सर ये कंक्रीट जो हम करते हैं रूफ के लिए, तो उसमें सर ये इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स के लिए वो